Assalamu alaikum and welcome back to all. Welcome back students in my channel. Today we are going to continue for standard 11 subject economics chapter number 7 Indian economy. Today's topic is characteristics of India as a developed. This is the fifth part of this chapter. I already taught you so many characteristics. Today we are going to continue remaining characteristics of this topic. This is very important topic for examination. So concentrate here and let's start with characteristics of India as a developing economy. In my last video, I taught you service sector with some data from primary sector, from secondary sector and tertiary or service sector. Now, I am explaining you. In India, year 1951, the contribution of primary sector in employment was 72%, that of industrial sector was 10.6% and service sector was 17.3%. In 1991, the contribution of primary sector in employment is 66.9%, 12.7%, industrial sector was 12.7% and service sector was 20.4%. While in year 2001, the share of primary sector in employment 56.7%, industrial sector was 18.2% and the service sector was 25.2%, and in 2011-12, the share of primary sector in employment was 48.9%, that of secondary sector was 24.3%, and service sector was 26.9%. Thus, it is seen that from 1951 to 2011-12, the employment has shifted from primary sector to industrial and service sector. ये जो डेटा दिया गया है इसके थ्रू हमें यहाँ पे पता चलता है 1951 जब इनिशियली बेस था तब जो सर्विस सेक्टर और जो सेकेंडरी सेक्टर था उसमें से जो एम्प्लॉयमेंट मिलती थी वो थोड़े लेवल पे थी और एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर में से सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती थी. धीरे धीरे वो कम होके वो जो एम्प्लॉयमेंट थी वो शिफ्ट होके नाउ सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में और टेरिटरी और सर्विस सेक्टर में वो शिफ्ट हो गई है. इसका मतलब अभी 48.9% से एग्रीकल्चर सेक्टर में से इनकम मिलती है, फिर 24.2% से इंडस्ट्रियल सेक्टर में से और सर्विस सेक्टर में से 26.9%. यानी ये जो पहले इनिशियली बेस में जो डेटा थे वो सारे शिफ्ट होके सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ गए हैं. ये जो डेटा है वो 11-12 का है. नाउअडेज हमारा जो ईयर चल रहा है 2020-21, तो अभी जो डेटा है वो डेटा फुल्ली उसमें चेंजिंग होगा. यानी अभी कितने लेवल पर सर्विस सेक्टर में है, कितने लेवल पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, वो अभी डेटा चेंज होके आएगा. Number 5, improvement in basic utilities. Indian has shown significant improvement in provision of various utilities in the urban as well as in the rural area like electricity, water supply, roads, irrigation, transport, communication, health, education and such. इंडिया की जो यूटिलिटी यानी प्राइमरी यूटिलिटीज़ है उसमें बहुत बड़े लेवल पर डेवलपमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर सप्लाई सर्विस में, रोड सर्विस में, इरिगेशन सर्विस में, ट्रांसपोर्ट सर्विस में, कम्युनिकेशन सर्विस में, हेल्थ सर्विस में, एजुकेशन सर्विस में, ये सारी चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है. नाउ इरिगेशन. In 1950-51, only 22.6 meter hectare of land across the country was irrigated, which increased to 63 meter hectares in 2012 and 13. Thus, about 45% of the total agricultural land has irrigation facilities in present times.
50-51 में ओनली 22.6 मीटर हेक्टर में ही इरिगेशन की सुविधा थी, जो अभी 2012-13 में बढ़ के 63% हुई है। यानी ओवरऑल जितना भी एग्रीकल्चर है उनका 45% एग्रीकल्चर ऐसी है जिसको इरिगेशन की फैसिलिटी मिल रही है, यानी एक डेवलपमेंट कहा जा सकता है। Literacy. The literacy rate which was 18.33% in 2011 rise to 73% in 2011. Source: Economic Survey 2013-14. In 1950s, there were 20 universities and 500 colleges, which increased to 719 universities and 35,000 respectively by 2013-14. This indicates rise in higher education. लिटरेसी रेट जो रेट था वो 2011 में 18.33% था, जो राइज होके 2011 का जो डेटा है 73% हुआ। फिर जो 2019-50 में 20 यूनिवर्सिटी थी ओवरऑल इंडिया में और 500 कॉलेजेस थी, जो इंक्रीज हो गए 719 यूनिवर्सिटी हो गई है और 35,000 कॉलेजेस अवेलेबल है ओवरऑल इंडिया में। ये एक बड़ा इम्प्रूवमेंट है लिटरेसी लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे। नाउ इलेक्ट्रिसिटी सर्विस। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विच वॉज अराउंड 2300 megawatt in 1950-51 increased to 2,43,000 megawatt in 2011 and 12. Initially time पे 2300 ओनली मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल थी, जो अभी 2011-12 में इंक्रीज होकर 2,43,000 मेगावाट हो गई है, यानी उसमें बहुत बड़े नंबर से इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। नाउ रोड नेटवर्क। इन प्रेजेंट टाइम्स इंडिया बिलोंग्स टू द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विथ लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क. It has approximately 48.6 lakh kilometer of concrete roads today. इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। नाउअडेज इंडिया बिलोंग्स टू लिस्ट ऑफ कंट्रीज विथ लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क। इंडिया एक जो लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क की कंट्री में बहुत सारी जो कंट्री है उसमें इंडिया का नाम भी यहाँ पे अवेलेबल है। दैट मीन्स इंडिया एक बहुत बड़े रोड नेटवर्क में आने वाली कंट्री में उसको भी समाविष्ट किया गया है। तो अभी 48.6 लाख किलोमीटर कंक्रीट का रोड अवेलेबल है। नाउ रेलवे सर्विस। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज द फोर्थ लार्जेस्ट टुडे विथ अ लेंथ ऑफ 65,000 किलोमीटर। इंडिया का नेटवर्क है जो ओवरऑल वर्ल्ड में 4th नंबर का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। Thus, India is progressing fast and is now a prestigious emerging economy. The per capita consumption of essential commodities has increased. Progress is made in areas of science, research, and technology development. Average life expectancy has increased, and so on. In the International Comparison Program, ICP, initiated by the World Bank in 2011, India was identified as the third largest country after USA and China, while 2005 India was at the 10th position. जो ICP जो प्रोग्राम का इन्वेस्टिगेशन हुआ था वर्ल्ड बैंक के थ्रू, उसमें USA के बाद इंडिया को 3rd नंबर की लार्जेस्ट कंट्री में उसको इंक्लूड किया गया था और 2005 में इंडिया 10th नंबर के रैंक पे थी, जो डेवलपमेंट होके इम्प्रूवमेंट होके वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कंट्री है उसमें उसे इंक्लूड किया गया। यानी नंबर 1 पे है USA, उसके बाद है चाइना और उसके बाद है इंडिया। यानी ये भी एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 7। आपको उसकी एक्सरसाइज होमवर्क में करनी है और मुझे उसके जो फोटोग्राफ्स है वो आपको मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करने हैं। सपोज़ आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी है ओवरऑल चैप्टर में, तो आप मुझे पर्सनली वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी। अस्सलाम वालेकुम।